লালমনিরহাট বিমান ঘাঁটি চালুর তোড়জোড়, বাংলাদেশের বিমান ঘাঁটি সাজাতে পাক এবং চীনের সাহায্য। শিলিগুড়ি লাগোয়া বিমান ঘাঁটি লালমনিরহাট 54 বছর ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে এই বিমানবন্দর। নতুন করে খোলা হচ্ছে বিমানবন্দর, জানালেন বাংলাদেশের সেনা আধিকারিক। লালমনিরহাট বিমান ঘাঁটি চালুর তোড়জোড় শুরু করেছে বাংলাদেশ। लालमनिरहाट एयर बेस, लालमनिरहाट अब विमान घाटी साउथ एशिया की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी विमान घाटी दोस्तों बनने जा रही है। इस बार ये जो कंफर्मेशन है बांग्लादेश की तरफ से आई है। इस बार तस्दीक बांग्लादेश के आर्मी चीफ की तरफ से आई है। जब एक जर्नलिस्ट के तरफ से एक सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो आर्मी चीफ ने जवाब देकर हिंदुस्तान के ऊपर लंका ढा दी है, हिंदुस्तान के ऊपर कहर बनकर टूट चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। बड़ी खबर है जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश की तरफ से तस्दीक सामने आई है दोस्तों। बांग्लादेश की तरफ से कंफर्मेशन सामने आई है लालमनिरहाट एयरबेस को लेकर के। अब कहा यह जा रहा है कि ये जो लालमनिरहाट एयरबेस है इसको ऑपरेशनल करने जा रहा है बांग्लादेश अब इसके ऊपर काम करने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन मीडिया नहीं कह रहा, ये अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं कह रही, अब खुद बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने इस बात को कंफर्म कर दिया है। क्योंकि इंडियन मीडिया इसके ऊपर बार बार, हिंदुस्तानी जो एक्सपर्ट है इसके ऊपर रिपोर्ट जारी कर रहे थे, क्योंकि उनको इसके ऊपर बहुत ज्यादा खतरा महसूस हो रहा था, क्योंकि वो इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आते थे। लेकिन दोस्तों अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है। तो इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे। क्या विमान घाटी के साथ साथ अब वहां पर मिलिट्री बेस भी बनने जा रहा है, डिफेंस फैक्ट्री भी बनने जा रही है, और क्या कुछ बनने जा रहा है। फिर उन्होंने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के बारे में क्या कहा है वो भी मुद्दा सामने आया है। फिर उन्होंने एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात भी की है। उन्होंने फिर एक बांग्लादेश और म्यांमार के दरमियान कॉरिडोर की बात भी की है। फिर चिटागोंग जो पोर्ट है उसको एक कंपनी जो दुबई की कंपनी है उसको देने के ऊपर भी उन्होंने कुछ कहा है। तो दोस्तों आइए इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। লালমনিরহাট বিমান ঘাঁটি চালুর তোড়জোড়, বাংলাদেশের বিমান ঘাঁটি সাজাতে পাক এবং চীনের সাহায্য। শিলিগুড়ি লাগোয়া বিমান ঘাঁটি লালমনিরহাট 54 বছর ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে এই বিমানবন্দর। নতুন করে খোলা হচ্ছে বিমানবন্দর, জানালেন বাংলাদেশের সেনা আধিকারিক। লালমনিরহাট বিমান ঘাঁটি চালুর তোড়জোড় শুরু করেছে বাংলাদেশ। বিমান ঘাঁটি সাজাতে এবার পাক আর চীন সাহায্য করছে। শিলিগুড়ি লাগোয়া বিমান ঘাঁটি এই লালমনিরহাট নতুন করে কেন সেই বিমান ঘাঁটি চালু করবার তোড়জোড় করছে বাংলাদেশ? সেই বিমান ঘাঁটি সাজানোর জন্য কি অন্য উদ্দেশ্য রয়েছে? পাক আর চীনের সাহায্য মিলছে? লালমনিরহাট যে বিমানবন্দরটি, এটা অনেক পুরনো একটা বিমানবন্দর। এটা আগে ছিল, ব্যবহার হয়নি। প্রয়োজনের নিরিখে সেটাকে আবার সচল করা হচ্ছে, নতুন করে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রয়োজনের নিরিখেই এই বিমানবন্দরটিকে সচল করা হচ্ছে এবং দেশের অ্যাসেট দেশের প্রয়োজনে ব্যবহার হবে, এটাই খুব স্বাভাবিক। এতদিন প্রয়োজন হয়নি, ব্যবহার হয়নি, এখন প্রয়োজন পড়েছে, ব্যবহার হচ্ছে এবং তার কারণে এটাকে নতুন করে সংস্কার করা হচ্ছে, কলেবর বৃদ্ধি করা হচ্ছে, সেখানে নতুন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হবে। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের পর ভুজ থেকে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্য বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। জানিয়েছেন, পাকিস্তানকে এখনো বলছি, ভারত বিশ্বের মধ্যে অর্থনীতিতে 4 নম্বরে রয়েছে। পাকিস্তানের মানুষ শুনে রাখুন, আপনাদের সেনা সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে, নিজেদের ক্ষমতার জন্য এই খেলা খেলছে। পাকিস্তানের বাচ্চাদের বলবো, পাক সেনা সন্ত্রাসীদের সমর্থন করছে। আপনাদের ভবিষ্যৎ তারা কিন্তু নষ্ট করছে, আপনাদের অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পাকিস্তানকে ঠিক করতে সেখানকার মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে, এমন বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অপারেশন সিঁদুর, আর সেই অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের পর ভুজ থেকে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। গুজরাটের
ওয়াদোদারাতে যখনই রোড শো করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তাকে দেখে সাধারণ মানুষের বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাস। জাতীয় পতাকা হাতে তারা যেমন অভিবাদন জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে, কেননা যেভাবে অপারেশন সিঁদুরের সাহায্যে পাকিস্তানকে প্রত্যাঘাত করেছে, যেভাবে যোগ্য জবাব দিয়েছে ভারত, সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब अब जो हिंदुस्तान और वेस्ट बंगाल का जो मीडिया है वो उसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है कि एक तो लालमोनीहाट जो एयर बेस है अब वो बनने जा रहा है। और ये मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सेकंड जो वर्ल्ड वार है उसके बाद से ये ऑपरेशन नहीं है, वैसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि जो शेख मुजीबुर रहमान थे उसको चालू करना चाहते थे, लेकिन तब जो इंडिया के इंदिरा गांधी थी, पता नहीं कौन थी, हाँ इंदिरा गांधी, वो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने रोक दिया था कि भाई ये जो ये है विमान घाटी इसको आप चालू ना करें, क्योंकि खतरा था, पाकिस्तान की तरफ से खतरा था। तो इसलिए फिर वो बाद में चालू, जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया 1971 की बात है, तो फिर वो ये जो विमान घाटी है इसको बंद कर दिया था। लिहाजा इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो ये बिल्कुल चिकन नेक के पास है, 10 किलोमीटर दूर चिकन नेक सिलिकोरी कॉरिडोर है। और फिर आप देखें कि ये जो विमान घाटी है ये एशिया की दूसरी बड़ी विमान घाटी बनने जा रही है। फिर यही नहीं है, बल्कि इसके बिल्कुल बिल्कुल साफ बताया ये जा रहा है, आर्मी की ऑफिशियल्स की तरफ से भी कंफर्मेशन सामने आई है कि वो एक मिलिट्री बेस भी इसके पास बनाने जा रहे हैं। मिलिट्री बेस, मैं कहता हूं कि ये भी एक इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा झटका दिया है बांग्लादेश की तरफ से। और फिर उन्होंने आर्मी के ऑफिशियल्स ने बात की है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि देखें जो इलेक्टेड हुकूमत होगी वो आकर ये बड़े बड़े फैसले कर सकती है। जिस तरह से म्यांमार के साथ आप एक कॉरिडोर बना रहे हैं, जो कहा जा रहा था कि म्यांमार के साथ एक कॉरिडोर बनेगा, और इसी तरह जो चिटागोंग पोर्ट है उसके ऊपर अब उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसको जिस तरह से दुबई पोर्ट है उस तरह से उसको बनाना चाह रहे थे। वो कह रहे हैं कि ठीक है, ये जो दुबई कंपनी है ये भी फैसला हमारी जो इलेक्शन जीत कर आने वाली पार्टी होगी, जिसकी हुकूमत होगी, वो करेगी, हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। और फिर हम आपको ये भी दोस्तों बताएं कि जो लालमोनीहाट एयर बेस है अब फाइनली जो बांग्लादेश है उसने भी इसकी तस्दीक कर दी है। इससे पहले कहा जा रहा था कि नहीं भाई, ऑफिशियली बांग्लादेश की तरफ से इसके ऊपर कोई बात नहीं की जा रही थी, तब इसको फाइनल नहीं कहा जा रहा था, लेकिन भाई अब बांग्लादेश की तरफ से भी ये बात सामने आई है कि इसको ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये इंडिया के लिए बड़ा धचका है, इंडिया के लिए इसलिए धचका है क्योंकि इंडिया के बिल्कुल पास है, और बांग्लादेश अगर चाहे तो यहाँ से अपने हथियारों को उड़ाए और इंडिया में घुसाए और इंडिया की मुरम्मत कराए, इंडिया को धूल चटाए, इंडिया का सॉफ्टवेयर अपडेट कराए। यानी बांग्लादेश के पास आखिरकार ये एक बड़ा जो वो मैं समझता हूँ कि एक वो एडवांटेज हासिल होगा बांग्लादेश को, ये कम से कम ये जो एयरबेस बनने से। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक किया करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।